Okay, question number 6. Which of the following is most reactive towards the nucleophilic substitution reaction? That means you have to select one option which gives the nucleophilic substitution reaction most easily. Now, for the first option, here the lone pair of this chlorine atom take part in resonance with the double bond. That is clear. That means here the CCl bond get partial double bond character. Now, for the option B, that is chlorobenzene, that means you know the structure of the chlorobenzene like that, and here also the lone pair present at the alternate position of the double bond. That means here also the lone pair take part in resonance and this CCl bond get partial double bond character. For the third option, here also the Cl present at the alternate position of the double bond. If you see the structure of C option, that is CH3CH double bond CH and then Cl. Here also the lone pair of the chlorine atom take part in the resonance with the double bond. That means here the CCl bond get partial double bond character. That means in the option A, B and C, the CCl bond get partial double bond character due to the resonance. But for the option D, the lone pair of the chlorine atom here does not take part in resonance because here the lone pair is not present at the alternate position. See the structure, Cl, then CH2, then CH, then double bond CH2. That means here the lone pair of this chlorine atom does not take part in resonance. So here the CCl bond is purely single bond. Clear? That means the bond energy of CCl in option A, B and C is high, but the bond energy of CCl in the option D is low. That means this Cl easily substituted by nucleophile. So the molecule of option D take part in nucleophilic substitution reaction most easily. Clear? Okay, now let's move into the question number 7. Which of the following is a temporary effect? This question comes from the class 11 general organic chemistry. इधर बहुत ही एक important topic, that is electron displacement effect. You know, electron displacement effect. And what is the meaning of electron displacement effect? देखो नेम में ही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, और इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होता है वो टेम्पररीली डिस्प्लेस हो सकता है और परमानेंटली डिस्प्लेस हो सकता है. दैट मीन्स वी क्लासिफाई द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन टू टाइप्स. वन इज परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एंड अनदर इज टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट. जैसे कि सपोज एक इंडक्टिव इफेक्ट, सपोज इसका एग्जाम्पल क्या है, CH3Cl. तो इधर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस बॉन्ड कम्स टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है इसको बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. ऐसे ही रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिटरमाइन द टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. तो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टू टाइप्स, वन इज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड अनदर इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड अनदर इज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट. इंडक्टोमेरिक इफेक्ट. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सपोज एक कार्बोनिल कंपाउंड है जहाँ पर ये जो CO बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. नाउ व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑन दिस कार्बन, देन दिस पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस ऑन द ऑक्सीजन एटम. तो इधर जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू द अटैकिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आउटसाइड. तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है. न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है. अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होता. तो इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. ऐसे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है SN2 रिएक्शन. सपोज कार्बन के साथ एक Cl और 3 हाइड्रोजन है. क्लियर. एक न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है बैक साइड से,
and when the nucleophile attack on this carbon, then the sigma electron of this CCl bond displace on the chlorine atom. तो इधर जो sigma electron का displacement हो रहा है वो due to the attacking of this nucleophile from the outside. अगर nucleophile attack नहीं होता तो ये जो sigma electron वो chlorine के ऊपर displace नहीं होता. तो this one also a temporary electron displacement effect. तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टू टाइप्स, वन इज परमानेंट एंड अनदर इज टेम्पररी इफेक्ट. Permanent electron displacement effect are classified into three types: inductive effect, resonance and hyperconjugation. And temporary electron displacement effect classified into two types: one is electromeric effect and another is inductomeric effect. Now question number 8, negative deviation solution among the following. This question comes from the chapter solution, and you know the solution is classified into two types. One is आइडियल सॉल्यूशन एंड अनदर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ. नाउ सॉल्यूशन मीनिंग द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, एंड बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है. नाउ वी कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच कंटेन ए प्लस बी. ना इधर जो दो कंपाउंड है ए और बी, इसका साइज, पोलर नेचर अगर सेम टाइप है तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. ठीक है. नाउ दिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड अनदर इज नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके. नाउ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अच्छा है, ए और बी का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है फेनॉल और एनिलीन, इन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स तो है ही. उसके बाद फेनॉल और एनिलीन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेनॉल और एनिलीन के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है. तो ये हो गया हमारा एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन. क्लियर. एंड फॉर द पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट के बीच में कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है. तो आई थिंक पिक्चर इज क्लियर. सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल. आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मास नियर इक्वल्स टू सेम होता है और उसका पोलर नेचर नियर इक्वल्स टू सेम होता है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मास और पोलर नेचर सेम नहीं होता है. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स दो कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अच्छा होगा. और पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन मीन्स जहां पर दो कंपोनेंट का एक्स्ट्रा कोई बॉन्डिंग नहीं है. तो फॉर दिस क्वेश्चन फेनॉल और एनिलीन इज द नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन ड्यू टू द एक्स्ट्रा बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एंड राइट आंसर इज हीलियम 2, बिकॉज हेयर हीलियम इज अ नोबेल गैस एंड दो हीलियम एटम के बीच में कभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव. सो हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मोलारिटी ऑफ अ लिक्विड HCl will be, density is given 1.17 gram per cc. That means for this question density given 1.17 gram per cc. Now what is the meaning of this? 1.17 gram solute present in 1 cc solution. That means you can say the mass of the solute is 1.17 gram and the volume of the solution, that is 1 cc. Now you know the formula of the molarity, that is capital M equals to mass of solute divided by molecular weight of solute into the volume of the solution in liter. Here the mass of the solute is given 1.17 gram, put it 1.17, divided the molecular weight of the solute, that is HCl. So the molecular weight is 36.5 gram. Into the volume of the solution is 1 cc, that means 1 cc, and you have to change it into the liter, that means you have to multiply it with 1000, that equals to 1170 divided by 36.5, which is equals to 32.05 molar. That means here the right answer is option B.